ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मैं चंदन कुमार मिश्रा अपनी कक्षा चैनल आईडी @चंदन माई विद्या के लिए आज की कक्षा में आप लोगों के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के अपने प्रस्तुतिकरण को साझा कर रहा हूं। तो आइए ध्यान से इसको सुने, देखें, पढ़ें, लिखें और आप अपना विकास करें। इसके लिए आप कार्य करें, इसके लिए शुभकामना है। तो सीधे तौर पे आज की कक्षा पे आते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक प्रश्न है कि किराए पर रहने वाले मजदूर वैश्विक मंदी के दौरान आय के अभाव के कारण मकान मालिक और राशन दुकानों के बकाये के कुचक्र में फंस चुके होंगे। जो कोविड-19 के कारण बंदी हुई थी, कामकाज बंद हो गया था, लोग सब अपने अपने जगह पे रुक गए थे, तो उनको उसकी वजह से आर्थिक जो कुचक्र है गरीबी का, उनसे उबारने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। इस पर भी विचार कीजिएगा। कृपया उन्हें आर्थिक अनुदान देकर आज़ादी दें। कार्यस्थल पर वापसी और सतत रोजगार की व्यवस्था, सरकारी प्रशासन से समन्वय में श्रमिकों और नियोक्ताओं को सूचित करना चाहिए। मानवाधिकार संरक्षण की उपरोक्त मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता की तार्किक समालोचना करते हुए सिद्ध करें। उक्त संदर्भ में अपने सार्थक तर्कपूर्ण जिरह युक्त जनहित याचिका को सक्षम न्यायिक प्रवर्तन निकाय एवं वित्तीय अनुदान दाता संस्थाओं को प्रेषित करें। क्वेश्चन है, migrant workers might have been trapped into the economic crisis related with disability and delay to pay due rent amount to the landlords and purchase of essential foods and survival supporting commodity from their nearby retail shop owners during the global lockdown period era 2020 to 2023 amid SARS-CoV-2 virus-caused COVID-19 corona pandemic. This might have increased their vulnerability of exploitation from contemporary form of slavery. Concerned Government of India and members nations of the United Nations should conduct need and demand analysis survey to trace any as such instances of bonded labor to rescue them through financial grants and legal supporting framework based humanitarian relief services. Employers and laborers should be informed about resumption of normalcy and reinstallation of favorable working facilities and sustainable employment opportunities at their workplace with government support through respective administration of concerned jurisdiction areas, as well as employment opportunities created by local government, so that employees may decide either to stay in native places or return to their workplace before lockdown period wherever they were previously working. Critically analyze and prove the need of providing above mentioned humanitarian social security services for human rights protection of the vulnerable people and victims of above mentioned context of survival and livelihood related problems to improve ease of living for people. Correspond with competent legal rights protection authority and financial grants services providing entities with your argumentative public interest litigation for fundamental human rights protection of the above mentioned class of vulnerability and bonded laborers to liberate them and protect their freedom and independence. Greetings of Constitution Day of India 2025. From Chandan Kumar Mishra, Stress Management Trainer, YouTube class channel ID @CHANDANMYVIDYA। श्री गणेशाय नमः। अगली बात है वृक्षारोपण शिविर अभियान की क्रियाकलाप है। सरकारी आदेश द्वारा स्थानीय प्रशासन के सौजन्य से फलदार पौधों और सब्जियों की विविध प्रजातियों की फसलों के उत्पादन के लिए सड़कों, नहरों, खेतों, नदियों, तालाबों, खेत की आड़ियों और वन विकास के लिए
चिन्हित क्षेत्रों की सूची तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय लोगों को टोलियों में आमंत्रित करके पौधारोपण की विधि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान रहने, खाने और मनोरंजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। कर्मचारियों द्वारा स्वयं और लोगों के सहयोग से सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत वितरित पकी हुई फलों के बीजों को फल खाकर निकाल लें। कृषि और सामाजिक वानिकी विकास अधिकारियों के देखरेख में बीजों को रोपने के लिए उपचार किया जाना चाहिए। विशाल पौधाशाला नर्सरी तैयार की जानी चाहिए। लोगों को खेती करने के उपकरण दिए जाने चाहिए। बीजों और छोटे पौधों को रोपकर व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। लोगों द्वारा पौधों को विकसित होने तक उनकी देखरेख और सुरक्षा की जानी चाहिए। मनरेगा MGNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एवं अन्य योजनाओं के तहत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमों जैसे कि वृक्षारोपण अभियान में नियुक्त श्रमिकों एवं कार्यकर्ताओं को नियमित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। अगली बात है, मैं कुछ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, जो हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट हैं उसको भी बता रहा हूँ। 29 नवंबर 2025 मैंने अपने बचत खाता की पासबुक अपडेट कराई, किंतु मेरे बौद्धिक सेवाओं के लिए सरकार द्वारा लागू दर से अभी किसी प्रकार के शुल्क या आय राशि बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्रियान्वित मेरे बचत खाते में जमा नहीं की गई हैं। फुलवारी शरीफ थाने में एक आवेदन पत्र जमा किया। इसमें पूर्व के प्रशासनिक संवादों और पत्राचार की छाया प्रति भी जमा की हैं। पूर्व में प्रेषित आवेदन के संदर्भ में सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा रहेगी। प्रखंड कार्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूचना बोर्ड लगाई जानी चाहिए कि कौन सी लोक सेवाएं किस प्रकार के लाभार्थी के लिए हैं। इसके लिए आवेदन पत्रों को वितरित किया जाना चाहिए। गांवों में शिविर लगाकर लोगों को विविध आवेदन पत्र उपलब्ध कराकर फॉर्म भराकर उन्हें योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय पंचायती राज संगठन के प्रतिनिधि भी सहयोग कर सकते हैं। प्रखंड कार्यालय के पास स्थित किसान सहायता केंद्र के अधिकारी से संक्षिप्त चर्चा के दौरान ज्ञात किया कि किसान कार्ड बनाने वाले कृषकों को बीज और कृषि लागत सहयोग किया जाता है। पूछने पर एक अधिकारी ने बताया कि अभी फलों और सब्जियों के बीज या पौधों की आपूर्ति नहीं होती है। इस व्यवस्था को भी सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। सड़क पार करने हेतु भीड़ भरे और अत्यधिक ट्रैफिक वाले चिन्हित स्थलों पर रेल पथ या सड़क ऊपरी पुल या भूमिगत पैदल सड़क पार करने हेतु पुल बनाना चाहिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क या रेल पथ पार करने में सहयोग किया जा सके। सार्थक और समाजोपयोगी सोच विचार की बौद्धिक प्रक्रिया कठिन और जटिल होती हैं। विविध प्रकार के दृश्य, श्रव्य और सांकेतिक संवाद संसाधनों में से अपने कार्य लक्ष्य निर्दिष्ट संवेदना स्टिमुलेशन को ध्यान और एकाग्रता से चयनित करना पड़ता है कि किस बात पे ध्यान दें, किस पे फोकस करें। इसके बाद मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण और नवाचार विधि से समाधान निर्दिष्ट कथन के वाक्य सृजन की प्रक्रिया चलती हैं। शैक्षिक शोध और अनुसंधान द्वारा ज्ञात उपस्थित परिप्रेक्ष्य की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञान समुद्र मंथन द्वारा उपर्युक्त विकल्प ज्ञात करने की बौद्धिक चिंतन प्रक्रिया होती है। व्यक्तिगत विषय विशेषज्ञों, पेशेवरों और संस्थागत सेवियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा या समाधान, सुझाव, दृष्टिकोण, घटना अध्ययन, केस स्टडी, सूचना संवाद, शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री, प्रतिवेदन, कार्य योजना, चर्चा के विषय वस्तु, कार्य की रणनीति, कार्य की उपयोगिता सिद्धिकरण पत्र, कार्य संकल्पना पत्र की परीक्षण द्वारा इन कार्यों द्वारा प्राप्त होने वाले समाजोपयोगी प्रगतिनिष्ठ लाभों की विवरण तैयार की जाती हैं। तदनुसार परियोजना क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, परियोजना के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु अनुदान बजट,
समय सारणी, रिपोर्टिंग प्रपत्रों, प्रगति प्रतिवेदन की रचना की जाती है। चयनित कार्यों को निष्पादित करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ताओं को चयनित, प्रशिक्षित और नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्थाओं द्वारा तकनीकी और वित्तीय अनुदान द्वारा भी चयनित व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा इच्छुक सदस्य राष्ट्रों में सतत विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त करने हेतु विविध कार्य किए कराए जाते हैं। कार्यों की प्रगति की सहयोगी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन की तार्किक और व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न कराए जाने चाहिए। उपरोक्त विधि से अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व आधारित समाजवादी जन कल्याणकारी लोकतांत्रिक सरकार प्रशासन द्वारा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा सेवा किया जाता है। एक क्वेश्चन है, पैराग्राफ क्वेश्चन है, मंथली मिनिमम लिविंग वेजेस ग्रांट्स शुड बी ग्रांटेड टू एवरीबॉडी। ऑप्शन बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स and natural rights of the LGBTQ community, lesbian, gay, bisexual, and transgender, and do not revealing their sexual orientation related community, saves their life without any stigma and discrimination. Since schooling, any individual can select to live in joint family or nuclear family. Prompt security support services and medico-legal humanitarian relief could save lives of vulnerable people and victims from any kind of physical, psychological, economical, or social exploitation, either by close relatives or other person. Union and separation of marriage relationships should be flexible. No one should be forced and insisted to develop marriage relationship. Retain a stressed relationship with live-in partner, male lover, female lover, fiancé, wife or husband. Marriage and divorce practices should be easy and justful. Criminals are often punished for the crime. Security services save lives. Separated husband could again marry to become husband of same or other person, and widows or separated wives may also become wife of same person or other person as per society practices, and protected by law and order enforcement, administration and governance. Concerned law enforcement agency of the related area assures safety of life of the affected inhabitants and general population. Peaceful progressive relationship brings prosperity and safety for survival. Review and elaborate various aspects of protection of the human rights of the humanitarian society across the globe with a special emphasis on women empowerment. Peace building fund utilization and resources optimization strategies. I had been through a presentation broadcasted on United Nations YouTube channel about release of United Nations Peace Building Fund. So I would like to suggest here with some assumptions about proper utilization of Peace Building Fund. So the Peace Building Fund utilization and resources optimization strategies presented are as follows: like translation of the United Nations broadcast into the language of governance and administration of the each of the member nations of the United Nations. 4. Printed study materials production, books, magazines, newspaper, training materials, films and television serials production, documentary production would increase the teaching learning material strength of the United Nations multiplied by 196 times or more than that. Resultantly, more people could be hired, trained, and deployed to serve global humanitarian society. Sustainable Development Goals 2030 related projects could be smoothly implemented by United Nations Peace Building Fund. Number 3. Climate change adaptation related disaster response action plan could be implemented easily by utilizing United Nations Peace Building Fund. Rational and universal basic living allowance grants could be sponsored by United Nations Peace Building Fund.
Global humanitarian relief services for vulnerable and victims of natural calamities or armed conflicts related humanitarian crises could be served for rescue, recovery, remedies, and healthcare revival, rehabilitation, reconstruction of the new and devastated infrastructures, hiring more people across the globe to work with United Nations Peace Building Progressive Program. Next, skilled and working professional and organization across the globe could be sponsored, impaneled, awarded with technical services providing manuals and program of action and budget to implement United Nations program of action for global peacekeeping and progressive activities to improve ease of living of all human beings of our planet Earth. United Nations Emergency Relief Services funding grants could also be sponsored through United Nations Peace Building Fund, and additional grants could also be sanctioned in this regard by global financing organizations like International Monetary Fund and World Bank. Supply of grants for other kinds of fund requests from United Nations entities by civil society organizations and development professionals could also be sponsored for implementation of welfare oriented social security and humanitarian enforcement services into the various segments of the society across the globe with active engagement of civil society based organizations. So, review, analyze, evaluate, and elaborate the above mentioned logical framework and technical justification presented for resources optimization and fund utilization of the United Nations Peacekeeping Fund and other kinds of grants. Next, there is a question I would like to put forward here with like the question appears as like hunger is greatest problem for survival of living beings. Remind it, hunger is greatest problem for survival of living beings. Individual living allowances grants immunes person from vulnerability of trap of vicious cycle of poverty. Daily laborers earns per diem as per their skills. People seeks highly paid jobs and assignments. People aspires to become rich and self-reliant for their survival. A few women across the globe are also featured in attractive romantic posture with their sex partner. Forced sex labor, sex trafficking should be stopped, and trapped victims should be rescued for rehabilitation. If working at per choice and consent, they should be provided with other alternative sources of income. However, lucrative porn attracts audience for long time and memories of viewing helps in stress relief. Masturbated person avoids sex related thinking for the time being till next period. Due payment should be released for those superstars also. Their security should be arranged. Honorable payment and profits of the broadcast should be shared with featured artists to empower them economically so that they could live normal prosper life. Income should be released for consent based superstars filmed in erotic movies along with alternative employability skills development training and placement. Matrimonial options should be provided to them also. Reproductive health training utility for newly married people strengthen loving relationship between married couples. However, stigma, discrimination, and exploitation on any basis should be prohibited. Victims and vulnerable of any forms of violence or scarcity induced profession should be protected. Critically analyze and elaborate the various aspects of women and human empowerment through humanitarian services delivery of technical and financial nature to the various kinds and classification of beneficiaries of
humanitarian relief services. So I would like to proceed further with my presentations. It is a suggestion for you like स्वयं खुद या अपने से पढ़ने या अपनी स्वयं की डिजिटल कोचिंग क्लास या कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का तरीका है। सबसे पहला, कॉपी किताब की दुकान से एक कॉपी, रजिस्टर, कलम, उपस्थिति पंजी, विभिन्न कक्षाओं के सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें, मैगजीन, पत्रिका, विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मानक प्रश्न पत्र बैंक, मॉडल क्वेश्चन बैंक, पूर्व की परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर पेपर्स फॉर प्रीवियसली कमेंस्ड एग्जामिनेशंस, वैकल्पिक उत्तर पत्र आंसर शीट्स ले लें। रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, दैनिक हिंदी या पसंद की भाषा के समाचार पत्र ले लें। समाचार पत्र अपने मन से बार बार रोज़ लेते रहें। अपने स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर पर गूगल पर खोज करके उपरोक्त पठन पाठन सामग्री की PDF डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से YouTube एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। YouTube एप्लीकेशन क्लास चैनल पर अपना ईमेल लॉगिन करके अपना स्वयं का क्लास चैनल ID बना लें। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सिनेमा हॉल की तरह कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम, डिजिटल बोर्ड लगाकर दरी या गमछा बिछाकर बैठने या टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क लगाकर बैठने की व्यवस्था करके अपना क्लासरूम तैयार कर स्थापित कर लें। वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन लगवा लें या इंटरनेट डाटा पैक का रिचार्ज कराते रहें। एक कॉपी रजिस्टर पर अपने स्वयं या अपने पार्टनर को साथ लेकर अपनी क्लासरूम कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम रख लें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम, पता, कांटेक्ट करने हेतु मोबाइल फ़ोन नंबर, आपके कोचिंग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कक्षाओं की सूचना और फीस के विवरण लिखे हुए फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, लिफलेट, पंपलेट, कैनोपी, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या प्रमोशनल वीडियो बना लें और प्रचार करा लें और कराते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन करके श्री गणेशाय नमः करें, यानी शुरुआत करें। इसके लिए अपने परिचितों, आमंत्रितों को बुलाकर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैनर लगाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके भाषण, नृत्य, नाच, नाटक, गीत गायन, कैरियर काउंसलिंग सेशन के द्वारा कार्यक्रम करें और आगंतुकों को बैठने, नाश्ते, खाने की व्यवस्था करें। समय पर स्थानीय जिला निबंधन कार्यालय से अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को पंजीकृत करा लें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कक्षा आयोजित करने हेतु समय सारणी बना लें कि सप्ताह में किस किस दिन कितने से कितने बजे तक किस क्लासरूम में किस विषय की कक्षा, कौन सर या मैडम की प्रस्तुति या यूट्यूब क्लास चैनल ID से चलेगी। फीस की रसीद, डे बुक, लेजर, जनरल पर दैनिक आय और खर्च के विवरण लिखते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में शुद्ध साफ पीने के पानी, शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर लें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या कार्यालय में नाम लिखवाकर पढ़ने आने वाले पास पड़ोस के विद्यार्थियों के साइकिल, मोटरसाइकिल, कार पार्किंग की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग प्राप्त करके स्थान की व्यवस्था कर लें। दूर से पढ़ने और काम करने आने वाले विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के रहने के लिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास के मोहल्ले में आवासीय हॉस्टल मालिकों से संपर्क करके किराए पर रहने हेतु व्यवस्था कर लें और सरकारी छात्रावास में रहने हेतु अधिकारी से पत्राचार भेंट वार्ता द्वारा व्यवस्था कर लें। दैनिक तौर से करेंट अफेयर्स, समसामयिकी विषयों की जानकारी हेतु संसद टीवी, विभिन्न टीवी चैनलों, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं के यूट्यूब चैनल, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा यूट्यूब एप्स क्लास चैनल ID पर प्रकाशित प्रस्तुतियों को भी कक्षा समय सारणी में समय समय पर नियमित रूप से प्रसारित करते रहें। आप स्वयं विभिन्न विषयों पर निबंध, टिप्पणी लिखते रहें और अपने साथ जुड़े शिक्षक शिक्षिकाओं को भी विभिन्न विशेषज्ञता के विषयों पर अपनी कक्षा नोट्स, क्लास नोट्स लिखने के लिए प्रेरित करें।
अपने विद्यार्थियों से भी अपने आलेख, निबंध, टिप्पणी, सिलेबस, पाठ्यक्रम के अनुसार किसी किसी विषय पर कक्षा नोट्स तैयार करके प्रस्तुतिकरण करने हेतु निर्देश दें। अपने मोबाइल फ़ोन पर कैमरा एप्लीकेशन से, स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आयोजित की जाने वाली कक्षाओं की वीडियोग्राफी कराकर वीडियो कक्षाओं को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब क्लास चैनल आईडी पर अपलोड करके प्रकाशित करते रहें। प्रसारित वीडियो के विवरण में विभिन्न चैनलों के लिंक PIB के हैशटैग लिखकर उन्हें अपनी कक्षा के बारे में सूचित करें। हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं के व्याकरण शिक्षक शिक्षिका को आमंत्रित करके अनुवाद की कक्षा आयोजित करके सीखें, सिखाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों, भारत के केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्य और रोजगार के अवसरों की सूचना प्राप्त करके स्वयं या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त कर रहे कुशल विद्यार्थियों को भी रोजगार प्राप्त करने में मदद करें। रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और व्हाट्सएप ग्रुप वेबसाइट से विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों की रिक्तियों के प्रसारण, फॉर्म भरने की तिथि, फॉर्म मिलने के स्थान, एडमिट कार्ड प्राप्त करने हेतु पत्राचार, परीक्षा हेतु क्रैश कोर्स, परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज, विद्यार्थियों द्वारा सॉल्व्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, मॉडल आंसर, मानक उत्तर की डिस्कशन एवं परीक्षा केंद्र पर आने जाने में मदद और मार्गदर्शन करके विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते रहें। इंटरव्यू ट्रेनिंग, साक्षात्कार देने की सही विधि की प्रशिक्षण आयोजित करें। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी आयोजित करते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने धार्मिक मान्यता और विद्यार्थियों की धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक उत्सवों पर गणतंत्रता दिवस, सरस्वती पूजा, वार्षिक दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, शिक्षक शिक्षिका दिवस, बाल दिवस, परीक्षा फल प्रकाशन और पुरस्कार वितरण, पेरेंट टीचर मीटिंग, कलाकारों के नृत्य, गीत, नाटक प्रस्तुति भी कराएं। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ रहे विद्यार्थियों की कोर्स के अनुसार की अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में उन्हें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट, इंटर्नशिप पर भी जाने हेतु भी विभिन्न संस्थाओं से समन्वय, संपर्क और साझेदारी करके उन्हें सहयोग करें। यदा कदा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्था की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बना लें और ऑडिट भी कराते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्था द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभों को विविध लाभप्रद निवेशों द्वारा धन से भी धन कमाते रहें और अपना सतत विकास करते रहें। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्था के साथ कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं की भारतीय जीवन बीमा योजनाओं के तहत बीमा भी करा लें। विद्यार्थियों के लिए जाने वाले कोचिंग शुल्क, प्रशिक्षण के फीस में जीवन बीमा योजनाओं में पंजीकरण की भी प्रावधान रखकर उनके जीवन बीमा योजनाओं में पंजीकरण कराई जानी चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की 5 लाख रुपयों की सहायता के प्रावधान के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड की तरह विद्वान भारत शिक्षा योजना को लागू करने से विद्यार्थियों को साल भर में पढ़ाई करने हेतु 3 से 5 लाख रुपयों या अधिक का अनुदान की व्यवस्था करने से भारत देश सतत विकास लक्ष्य 4 सर्वांगीण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरित होकर प्रगतिशील हो सकता है। श्री गणेशाय नमः। फ्रॉम चंदन कुमार मिश्रा, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर, यूट्यूब क्लास चैनल ID @ChandanMyVIDYA। तो आज के प्रस्तुतिकरण का टाइटल क्या हो जाएगा? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पीपुल्स वेलफेयर, लोगों के कल्याण करने के विभिन्न माध्यम।
तो चलिए अगली कक्षा में आपसे और विषयों पर साझा करेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार और शुभकामना। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः।